Hi guys, welcome to As Simple as Possible. This is video 2 of corporate law revision. This video is in Hindi as well as in English. Let's start with the video. First point, FCRA की membership ट्रांसफर नहीं हो सकती है. FCRA की registration ट्रांसफर नहीं हो सकती है. Second point, donation from a person of Indian origin who has acquired foreign citizenship is treated as foreign contribution. पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है बट उसने फॉरेन सिटीजनशिप ले ली है तो उसको फॉरेन कंट्रीब्यूशन ही माना जाएगा. पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है वो भी जो भी फॉरेन सिटीजनशिप ले लेता है वो उसका कंट्रीब्यूशन फॉरेन कंट्रीब्यूशन माना जाता है. बट एनआरआई अगर है कोई पर उसने फॉरेन सिटीजनशिप नहीं ली है, उसकी सिटीजनशिप अभी भी इंडिया की ही है, तो उसको फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं माना जाता है. Second, next point, persons not permitted to accept foreign contribution are allowed to accept foreign contribution from their relatives. Any person receiving foreign contribution in excess of 1 lakh in a financial year from any of his relatives shall inform central government regarding details of foreign contribution received by him in electronic form FC1 within 30 days from receipt of such contribution. Next point, any foreign contribution or any income arising out of it shall not be used for speculative business, where speculative business includes investment in mutual fund. So foreign contribution से investment in mutual fund is not allowed. In case of emergent medical treatment aid needed on account of sudden illness during a visit abroad, the acceptance of foreign hospitality shall be intimated to the central government within 1 month of such receipt, giving full details including the source, value, purpose, manner. No intimation is required if the amount is up to 1 lakh. तो अगर कोई बंदा इंडिया से बाहर जा रहा है और वहां पे उसको मेडिकल एड की जरूरत पड़ी है बट उसने गवर्नमेंट को इन्फॉर्म नहीं किया है, तो अगर वो मेडिकल एड सिर्फ 1 लाख तक की है तब उसको इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं है, वरना उसको सोर्स, मैनर, हर चीज इन्फॉर्म करनी पड़ेगी अगर वो एड 1 लाख से ज्यादा की है. No foreign contribution shall be accepted by any association or company engaged in production, broadcast of audio, news, etc. तो FM, TV चैनल्स वगैरह को फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेना अलाउड नहीं है. नेक्स्ट, आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट. दो तरह के आर्बिट्रेशन क्लॉजेस होते हैं, आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट्स होते हैं. एक होता है आर्बिट्रेशन क्लॉज और एक होता है सबमिशन क्लॉज. आर्बिट्रेशन क्लॉज अग्रीमेंट में लिखा होता है और वो प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट के साथ होता है, बट सबमिशन क्लॉज अग्रीमेंट में लिखा नहीं होता है. ये तब होता है जब डिस्प्यूट्स इसके बाद अराइज होते हैं. मतलब दिस इज written in contract, this is not written in contract. This is before disputes have arisen, this is after disputes have arisen. So this is the simple difference between the two. This is for a short answer question. Second, next point, we move on to the next chapter, insolvency and bankruptcy code. I'm not going chapter wise, I'm just going point wise because this is just a revisionary video. Once you see the video, you should be able to recall the points. That is why I am covering the important points relating to any chapter. I'm not going chapter wise. Next, the provisions relating to insolvency and liquidation of corporate debtors shall be applicable only when the amount of default is
1 लाख और मोर। ऊपर भी आपने देखा था, हमने FCRA के केस में भी 1 लाख ही पढ़ा था, और यहाँ पे भी 1 लाख का ही अमाउंट है। सेकंड, इंसॉल्वेंसी में हमको पता है कि कोई कभी हमारे को पैसे नहीं आ रहे होते, तो उस चीज का रेजोल्यूशन का करने के लिए इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड बनाया गया है। तो इस केस में क्या होता है, एक छोटा सा आंसर इसमें मैं बताती हूँ। फाइनेंशियल क्रेडिटर है, उसको वो गया एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास एप्लीकेशन लेके कि मेरे को पैसे नहीं आ रहे हैं। एप्लीकेशन में अगर कोई भी तरह की दिक्कत है, तो फिर वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी फाइनेंशियल क्रेडिटर को बोलेगा ये दिक्कतें हैं और आप एप्लीकेशन ठीक करके दो। और फाइनेंशियल क्रेडिटर को 7 डेज मिलते हैं फ्रॉम द नोटिस ऑफ रिजेक्शन उसको ठीक करके वापस सबमिट करने के लिए। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी मतलब NCLT, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ये एक छोटा सा पॉइंट था। नेक्स्ट, an insolvency resolution professional shall be eligible for appointment as a resolution professional for a corporate insolvency resolution process if he and all partners of the entity are independent of corporate debtor। मतलब कि कोई भी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अगर हम अपॉइंट कर रहे हैं जो हमारे को असिस्ट करेगा ये पूरे प्रोसेस में, तो हम उसको तभी अपॉइंट करेंगे जब हम बोलेंगे कि वो इंडिपेंडेंट है, या अगर वो एक फर्म है तो उसके सारे पार्टनर्स इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट मतलब कि वो एक रिलेटेड पार्टी नहीं है उस कॉर्पोरेट डेटर का जहां से हम लोग को पैसे लेने हैं। मतलब कि वो आज भी उस कॉर्पोरेट डेटर का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है, वो सारे कंडीशंस वो फुलफिल करता है जो कि अंडर सेक्शन 149 ऑफ द कंपनीज एक्ट वो बन सकता है। सेकंड, नेक्स्ट पॉइंट है कि वो एक एम्प्लॉय या किसी भी तरीके का डायरेक्टर, प्रोप्राइटर, सेक्रेटरियल ऑडिटर नहीं था वो उस कंपनी का, उस कॉर्पोरेट डेटर का लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स में। प्लस उसका कोई एम्प्लॉय, प्रोप्राइटर, पार्टनर नहीं था उस फर्म का जिस फर्म ने कॉर्पोरेट डेटर के साथ 5% या उससे ज्यादा का टर्नओवर लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स में मिला के ग्रॉस टर्नओवर उसने किया हो 5%। नेक्स्ट, इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस शैल बी कंप्लीटेड विद इन अ पीरियड ऑफ, ऐसा बोला जाता है कि हम लोग को 180 डेज में कंप्लीट करना है। अगर हमारे को हमने एनसीएलटी को सफिशिएंट कॉज दिया, हमने एप्लीकेशन सबमिट किया, हमारे को 66% वोट्स मिल गए कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स के, तो हमारे को और 90 डेज का एक्सटेंशन मिल जाएगा। बट कंप्लीट प्रोसेस हम लोगों को करना ही पड़ेगा 330 डेज में। यही रूल है कि CIRP, corporate insolvency resolution process, the entire process including the extension, everything should be completed within 330 days. Last point, मोरेटोरियम आपको पता है क्या होता है कि उस टाइम पे जो भी ड्यूज वगैरह होते हैं सब एकदम ठहर जाता है, हर चीज ठहर जाती है, कोई भी पैसा लेना देना बेचना कुछ भी अलाउड नहीं है, मोरेटोरियम लग जाता है। मोरेटोरियम के केस में क्या क्या प्रोहिबिटेड होता है? मोरेटोरियम के केस में किसी भी तरह का सूट या प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट करना प्रोहिबिटेड होता है। कोई भी तरीके का ट्रांसफर करना एसेट्स का, बेनिफिशियल इंटरेस्ट का प्रोहिबिटेड होता है। किसी भी तरीके का एक्शन अंडर द सरफाइसी एक्ट भी प्रोहिबिटेड होता है। किसी भी तरीके का रिकवरी लेना बाय इट्स ओनर और लेसर भी प्रोहिबिटेड होता है। बट इसमें एक पॉइंट है जिसकी वजह से मैंने ये पॉइंट डाला है इस रिविजनरी वीडियो में, कि अगर मेरे पे मॉरिटोरियम लग गया है और मेरे पास कोई लाइसेंस या ग्रांट आया गवर्नमेंट का, पहले से ही पड़ा है मेरे पास, तो क्या वो भी मेरा सस्पेंड हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा? नहीं, वो सस्पेंड या टर्मिनेट नहीं होगा, क्योंकि अगर हमने अपने सारे ड्यूज, करंट ड्यूज सारे पेड हैं, तो वो सस्पेंड नहीं होगा। यही था इस मॉरिटोरियम वाले पॉइंट का मेन पॉइंट समझने का, कि हमारे को अगर कोई भी लाइसेंस या ग्रांट मिलता है गवर्नमेंट से, तो वो सस्पेंड नहीं होगा अगर हमने हमारे सारे रिलेटेड ड्यूज उस चीज से रिलेटेड पे कर दिया है तो। This was all about this video. I hope you found the video useful. Please do comment, share and subscribe the channel, and of course, thanks for watching.